मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। डेट है 19/8/24। आज राखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके। The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinating us, even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology. They are all characteristic by the presence of root, stem, leaf, flower, and fruit. Here. In chapter 2 and 3, we talk about the classification of plant based on the morphological and other characteristics. हाँ, for any successful attempt at classification and understanding any higher plant, for that matter any living organism, we need to know standard technique terms and standard definition. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation of the plant to other environment. Example: adaptation to various habitat, protection, climbing and storage, etc. हाँ, एडेप्टेशन किसके किसके लिए प्लान करता है? प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए और स्टोरेज के लिए। हाँ हाँ, इसी के लिए एडेप्टेशन करता है। तीनों को चीज़ के लिए एडेप्टेशन करने करता है, प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए या स्टोरेज के लिए, एक्सेट्रा। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैम all of them have root, stem and leaves. हाँ, they may be bearing flower and fruit. may हाँ, may bear कर सकता flower and fruit. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground is called shoot system. हाँ, जो जमीन के अंदर उसको root system बोलते हैं, जो ऊपर है उसको shoot system बोलते हैं। ओके। The root in majority किसका? In majority of the dichotomous plant, the direct elongation of the radicle lead to the formation of primary root, which grow inside the soil. हाँ, यहाँ in majority of dicot plant में the direct elongation of radicle, हाँ, direct elongation of radicle lead to the formation of primary root, which grow inside the soil. Okay. It bear lateral root for several order that are referred to as secondary, tertiary ना। हाँ, जो प्राइमरी रूट जो बियर करता है लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट रेफर टू एज सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, एक्सेट्रा। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूएंट द टैप रूट सिस्टम। हाँ, कौन? प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूएंट द टैप रूट सिस्टम एज इन द मस्टर्ड। टैप रूट सिस्टम किसमें शो होता है? मस्टर्ड प्लांट में। ओके। इन मोनोकोटनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइफ एंड रिप्लेस बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट। हाँ, यहाँ पे क्या बोला? इंपॉर्टेंट है ना, मोनोकोटनस प्लांट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ होता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट, और रिप्लेस हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट से। ओके। These roots originate from the base of the stem and is constituent of fibrous root system as in the wheat plant. हाँ, monocotyledonous plant में होता है। Yes. Figure 2.b. In some plant like grass, monstera and banyan tree, root arise from part of the plant other than radicle are called adventitious root. Yes. The main function of the root system are the absorption of water and mineral, हाँ, from the soil और providing the proper encourage to the plant part. Encourage मतलब support, हाँ, storing reserve food material and synthesize of plant growth regulator. हाँ, प्राइमरी फंक्शन है रूट सिस्टम का क्या? एब्जॉर्प्शन करना वाटर और मिनरल को और प्रोवाइड इंकरेज टू द प्लांट पार्ट, और तीसरा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरिंग करता है रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और सिंथेसाइज करता है क्या? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को। हाँ, तो यह पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हाँ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स, इन नोट्स बर्ड्स। हाँ, दो गो स्टेम के बीच में बर्ड्स होता है। ओके। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ई रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। ओके, हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, पहला टैप रूट है, फिर फाइब्रस रूट और तीसरा एडवेंटिशियस। यही है
टैप रूट, हाँ लेटरल ग्रोथ होता है सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये फाइब्रस रूट है, मोनोकोट में होता है फाइब्रस रूट, एग्जाम्पल में विट। और ये एडवेंटेशियस रूट है, अदर देन रेडिकल है। हाँ, रीजन ऑफ द रूट इज कवर एट द एपेक्स, एपेक्स मतलब नीचे, नीचे हाँ, बाय ए थंबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल। हाँ, रूट कैप जो होता है प्रोटेक्ट द टेंडर एपिक्स, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपिक्स को ऑफ द रूट एज इट्स मेक इट वे थ्रू द सॉइल, मेक वे थ्रू द सॉइल। हाँ ओके। ए फ्यू millimeter above the root cap is the region of meristematic activity. The cell of this region is very small, very बहुत छोटा, very small, thin wall and dense protoplasm होता है। हाँ, very small बहुत small, thin wall and dense cytoplasm होता है। हाँ, they divide rapidly. The cell proximal to this region undergo rapid elongation. Proximal मतलब ऊपर। हाँ हाँ, rapid elongation and enlargement are responsible for the growth of the root inland। हाँ, enlargement क्या responsible for the growth of the root। This region is called the region of elongation। The cell of the elongation zone gradually differentiate and mature। हाँ हाँ, hence this zone proximal to the region of elongation is called the region of maturation। From this region some of the epidermal cell form very fine and delicate thread-like structure called the root hair। These root hair absorb water and mineral from the soil। हाँ, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक जो है रीजन ऑफ मैचुरेशन का, फ्रॉम दिस रीजन सम कुछ ऑल नहीं, हाँ, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल form very fine and delicate thread-like structure root hair। These root hair absorb water and mineral from the soil। Okay, the region of the root tip। हाँ, रूट कैप है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन और रूट हेयर। हाँ, modification of root in some plant change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and mineral। हाँ, ये बोला रूट जो है ना कुछ प्लांट में, सम प्लांट में चेंज कर लेता है देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। हाँ, एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन। हाँ, फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा कौन, अदर देन एब्जॉर्प्शन। हाँ, and conducting of water and mineral। हाँ, they are modified for support storage of food and respiration। हाँ, modified किसके किसके लिए होता, सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। tap root of the carrot and turnip and adventitious root of sweet potato and get slow and stir food। हाँ, can you give some more such example? Have you ever wondered what these hanging structure that support a banyan tree are? These are called prop root। हाँ, similarly the stem of maize and sugar cane have support root coming out of the lower node। हाँ, किसमें, लोअर नोट। हाँ, शुगर कैन और मेज में किससे होता है, लोअर नोट से रूट आता है, लोअर नोट्स ऑफ द स्टीम से आता है रूट। हाँ, दिस आर कॉल्ड द स्लिट रूट इन सम प्लांट सच एज राइजोपोरा ग्रोन इन सोपी एरिया, मतलब भींगा हुआ, हाँ कीचड़ जहाँ होता है, सोपी एरिया। मेनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, कैसा, वर्टिकली अपवर्ड, जमीन से बाहर आ जाता है। सच रूट इज कॉल्ड निमिटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट ऑफ बनियान ट्री। हाँ, कैसे सपोर्ट करता है ये, एस्पैरागस क्या है, ये भी एडवेंटेशियस रूट है। हाँ, टर्निप, कैरोट, ये क्या है, ट्रैप रूट है। स्वीट पोटैटो एडवेंटेशियस, इनोमेटोफोरिया। हाँ, अब आगे स्टीम। What are the features that distinguish a stem from root? The stem is the ascending part of the axis bearing branch, leaf, flower, fruit। हाँ, it develops from the pulp of the embryo of the germinating seed।
हाँ, द स्टीम बियर नोट्स एंड इंटरनोट। हाँ, स्टीम क्या बियर करता है? नोट्स एंड इंटरनोट। द रीजन ऑफ द स्टीम वेयर द लीव आर बोर्न आर कॉल्ड नोट्स। हाँ, वाइल इंटरनोट आर द पर्सन बिटवीन द टू नोट्स। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है जहाँ पे लिव ओरिजिनेट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नोट्स रीजन। हाँ, वाइल इंटरनोट पर्सन बिटवीन द टू नोट्स। यस, द स्टीम बियर बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। हाँ, स्टीम बियर करता बर्ड्स, हाँ, जो कि टर्मिनल और एक्सिलरी भी हो सकता। स्टीम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफ्टन बिकम वुडी एंड डार्क। हाँ, इससे क्वेश्चन अच्छा बनेगा पर हमको आता। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टीम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांच। हाँ, मेन फंक्शन क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांच बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। It conduct water, mineral and photosynthesis. हाँ, some steam perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation. ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्या मेन फंक्शन ऑफ द स्टीम का? क्या? स्प्रेडिंग आउट ब्रांच एंड बियरिंग लीव्स फ्लावर फ्रूट। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। हाँ, स्टीम जो होता है यंग में ना कंडक्ट कर लेता क्या? वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। सम स्टीम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। हाँ, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, modification of steam. The steam may not always be typical like what they are expected to. हाँ, यहाँ बोला द स्टीम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकल लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हाँ, अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंडा एंड कगेसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दैम। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ प्रियांटेशन टू टाइड ओवर ए कंडक्टिंग अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। हाँ, टर्मिक इंडिया मतलब रिप्रोडक्शन में काम आता है। हाँ, दे ऑल्सो मॉडिफिकेशन स्टीम किस में काम आता? ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ प्रियांटेशन टू टाइड ओवर conducting unfavorable for growth. Okay, steam tendrils which develop from axillary bud are cylindrical and spirally coiled, help plant to climb such as in groot में cucumber, pumpkin and watermelon and grapsin में। हाँ, टिंडल स्टीम टिंडल किस में होता है? ग्रूट्स एंड ग्रेप्सिन में। ग्रूट्स में क्या है? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप्सिन। एक्सिलरी बड ऑफ स्टीम में ऑल्सो गेट मॉडिफाई इनटू द वुड, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। हाँ, कौन होता है स्टीम में? एक्सिलरी बड। हाँ, एक्सिलरी बड होता है। एक्सिलरी बड ऑफ द स्टीम में ऑल्सो गेट मॉडिफाई इनटू द वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। हाँ, thorns are found in many plants such as citrus and benjuculus. हाँ, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्रोजिंग एनिमल। हाँ, थॉर्न जो होता है ना प्रोटेक्ट करता है प्लांट फॉर ब्रोजिंग एनिमल के खिलाफ। हाँ, सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टीम इनटू द फ्लैटेन ओपेंटिया और फ्लैशली सिलेंड्रिकल यूचरबिया स्ट्रक्चर। हाँ, हाँ, यहाँ पे क्या बोला? सम कुछ ही सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन। कौन? एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टीम इनटू द फ्लैटेन ओपेंटिया और फ्लैशली सिलेंड्रिकल यूफिबोरिया स्ट्रक्चर। हाँ, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यस, underground steam of some plant such as grass and strawberry etc spread to new niche when older part die, new plant are formed. हाँ, in plant like mint and jasmine a cylindrical lateral branch arise from the base of the main axis after growing aerially for some time arch downward to touch the ground. A lateral branch with short internode, each node bearing a rosette of list and top of root is found in aquatic plant like Pistia and Euphorbinia. हाँ, in banana, pineapple and
Cardiocyanthemum, the lateral branch originates from the basal and underground portion of the main stem, growing horizontally beneath the soil and come out obliquely upward, giving rise to the fleshly shoot. Complete. जिंजर, जमीन, कंडा, पटेटो और ये क्या एक्सिलरी वर्ड मॉडिफाई इनटू द टेंड्रल। हाँ, ये क्या स्टीम मॉडिफाई इनटू द स्पाइन। हाँ, स्टीम मॉडिफाई स्पाइन में किसका एग्जांपल है? वंजीवेलिया, वंजीवेलिया। हाँ, और क्या ऑक्सेलिया एस्पेवम है, ऑक्सेलिया एसपी है, यहाँ से राइज हुआ। ओके, और क्या रूट अराइजिंग फ्रॉम द नोट्स। हाँ, रूट अराइजिंग फ्रॉम नोट्स भी हो जाता। हाँ, स्प्रेडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन में काम करता। ओके, leaf, the leaf is a lateral जनरली फ्लैटेन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। हाँ, लीफ क्या है? लेटरल होता है, लीफ लेटरल में उगता है और जनरली फ्लैटेन होता है, जनरली फ्लैटेन स्ट्रक्चर होता है बोर्न ऑन द स्टेम। ओके, डेवलप एट नोट्स एंड बियर बर्ड्स इन द एक्सल। लिप्स क्या करता है? लिप्स डेवलप होता है नोट्स पे, लिप डेवलप कहाँ पे होता है? नोट्स पे। एंड बियर क्या करता है? वो बियर करता है ए बर्ड, बियर करता है लिप्स क्या बर्ड बियर करता है? बर्ड्स। कहाँ पे? इन द एक्सियल में। हाँ, द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू द ब्रांच। हाँ, कौन कौन बर्ड? एक्सिलरी बर्ड। हाँ, एक्सिलरी बर्ड जो है लेटर डेवलप हो जाता है ब्रांच में। ओके, लीव ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्मेटिक एंड आर अरेंज इन द एक्रोपेटल ऑर्डर। हाँ, लीव ओरिजिनेट कहाँ से होता है? सूट एपिकल मेरिस्मेटिक से एंड अरेंज होता है एक्रोपिटल ऑर्डर में। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गेन फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, लीव मोस्ट इम्पोर्टेंट organ for photosynthesis. Okay, a typical leaf consists of three main parts: leaf base, petal and lamina. The leaf is attached to stem by a leaf base and may bear two lateral small leaf like structure called the stipula. स्टिपुला क्या है? लेटरल टू दो गो लेटरल होता है, लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिपुला। हाँ, इन मोनोकोटनस द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू सीड कवरिंग द स्टेम और होले। यस, इन सम लेगुमिनस प्लांट, किसमें? सम लेगुमिनस प्लांट में द लीफ बेस में बिकम स्लोन विच इज कॉल्ड द प्यूलविनस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्यूलविनस, प्यूलविनस। यस, द पीटल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। हाँ, हाँ, पीटल क्या करता है? पीटल करता है हेल्प टू होल्ड ब्लेड टू लाइट। यस, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटल अलाउ लीफ बेस टू filter in by cooling the leaf and bearing fresh air to the leaf surface। हाँ, यहाँ important है। द पीटल का काम करता है हेल्प टू होल्ड ब्लेड टू लाइट। और क्या लॉन्ग होता है? जो लॉन्ग होता है पीटल क्या होता है? लॉन्ग होता है, लॉन्ग और थिन फ्लेक्सिबल पीटल होता है, अलाउ करता है लीफ ब्लेड टू फिल्टर इन विंड देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड बेयरिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। ओके, the lamina or leaf blade is green expanded part of the leaf with vein and venulate. Yes, there is usually a middle prominent vein which is known as midrib. Yes, vein provide rigidity to the leaf blade and act as a channel for transport of water, mineral and food material। हाँ, vein क्या है? vein जो पत्ता में होता है वो क्या करता है? प्रोवाइड रिजिडिटी, प्रोवाइड क्या करता है? रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। यस, द शेप, मार्जिन एंड एपिक सरफेस एंड एक्सटेंडेड ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरी इनटू डिफरेंट लीफ। हाँ, शेप, मार्जिन एंड एपिक्स क्या क्या? शेप, मार्जिन एंड एपिक्स, surface extended of incision of lamina vary into different leaf। ओके, ये देखो क्या यहाँ पे लिप बेस से अटैच है स्टीम से, यहाँ एक्सिलरी वर्ड है, ये क्या पीटल है, ये लेमिना या लिप ब्लेड बोला। हाँ, ये स्टिपुला है, टू स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ, और देखो यहाँ पे क्या, ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ लिप पार्ट। हाँ, पार्ट ये क्या? रेटिकुलर, क्योंकि ऐसा ऐसा जा रहा है। हाँ, ये रेटिकुलेट हो गया, रेटिकुलेट किसका? डाइकोट का एग्जाम्पल होता है, और ये पैरेलल है। हाँ, ये मोनोकोट का एग्जाम्पल होता है। ओके,
पेनिथियल कंपाउंड लीफ, हाँ नीम होता है, ऐसे होता है। हाँ, एक डिजिकल पे बहुत सारा आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेनिलर। और पाम मेटल कंपाउंड किसको बोलता है लीफ? सिल्क कॉटन में जो होता है, सिल्क कॉटन में, यस। वेनिटेशन, वेनिटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड द वेनलेट इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज टर्म एज वेनिटेशन। व्हेन द वेनिलेट फॉर्म ए नेटवर्क द वेनिटेशन इज टर्म एज रेटिकुलेट। हाँ, जब नेटवर्क फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट। व्हेन द वेन रन पैरेलल टू ईच अदर इन विथिन अ लेमिना द वेनिटेशन इज टर्म एज पैरेलल। लीफ ऑफ डाइकोटनस प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनिटेशन। हाँ, जनरली पोजेस, हाँ ऑलवेज नहीं बोला, जनरली, ओके। वाइल पैरेलल वेनिटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक द मोस्ट ऑफ द मोनोकोटनस प्लांट। हाँ, पैरेलल वेनिटेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? मोस्ट, मोस्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हाँ, मोस्ट मोनोकोटनस प्लांट का, ओके। टाइप ऑफ लीव्स, a leaf is said to be simple when lamina is entire or when incision the incision do not touch the midrib. हाँ, when the incision of the lamina reach up to the midrib breaking into the number of leaflet the leaf is called compound, yes. A bud is present in the axial of the petal in both simple and compound leaf but not in the axial of the लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। हाँ, यहाँ से इस क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। क्या? ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ पिटल, हाँ, इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सियल लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीव्स, यस। द कंपाउंड लीफ मे बी टू टाइप. In penithial compound leaf, a number of leaflets are present on the common axis. The reticle, हाँ, common axis की क्या बोलते हैं हम लोग? Rachis, हाँ, rachis, okay, which represent the midrib of the leaflet as in neem, हाँ, नीम में डबल एन आता है इसीलिए, इसमें डबल ई आता है इसीलिए नीम, ओके। In palm ethyl compound leaf, the leaflet is attached to the common point at the tip of the petal. कहाँ पे? टिप ऑफ द पिटल में, as in the silk cotton में, हाँ। कंपाउंड palm methyl compound leaf में the leaflet attached होता है common point पे at the tip of the petal as in silk cotton, हाँ। Phalotoxy. Phalotoxy is the pattern of arrangement of leaf on the stem or branch. हाँ, this is usually of three types: alternate, opposite, word. In alternative type, a single leaf arise from each node. Each node से, हाँ, single leaf arise होगा from each node, हाँ. In alternative manner, as in China rose, mustard and sunflower. In opposite type, a pair of leaf arise at the each node, हाँ, पेयर होगा, पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड इन द अपोजिट टू ईच अदर एज इन केलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट, केलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट, ओके। इफ मोर देन टू लीफ अराइज एट द नोड्स एंड फॉर्म वड़ल इट इज कॉल्ड द वड़ल एज इन एलोस्टोनिया। ये देखो चाइना रोज का एग्जांपल है, चाइना रोज का, हाँ, और गुआवा, हाँ, और ये एलेस्टोनिया, एक से बहुत सारा लीव्स उगा हुआ, यस। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। हाँ, लीफ मॉडिफाइड होता है फंक्शन करने के लिए अदर देन फोटोसिंथेसिस। दे आर कन्वर्टेड इनटू द ड्रग और क्लैम्बिंग एज इन पी और पी, किसमें लीफ मॉडिफाइड होता है ट्रिंडल, किसमें? पीस में, पी मटर, और स्पाइन फॉर डिफाइंस इनटू द केक्टिया में, ओके। द फ्लेशली लीफ ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, हाँ, फ्लेशली लीफ होता है कौन? ऑनियन एंड गार्लिक। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेसिया द लीफ आर स्मॉल एंड शॉर्ट लाइफ। क्या होता है? स्मॉल एंड शॉर्ट लाइफ, हाँ। इन सम प्लांट ऑफ ऑस्ट्रेलियन एकेसिया द लीफ आर स्मॉल एंड शॉर्ट लाइफ होता है। द petal in this plant expand, become green and
सिंथेसाइज फूड, हाँ। स्टेलिया कैसे में आता है, द पीटल क्या होता है, पीटल इन दिस प्लांट क्या होता है, एक्सपेंड करता है, एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, हाँ। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हाँ। स्टेलिया कैकेसियम क्या होता है, द पीटल इन दिस प्लांट एक्सपेंड करता है और बिकम ग्रीन एंड synthesize food, yes. Leaf of certain insectivorous plant such as pitcher plant and vanefly trap are also modified leaf, हाँ, trap are also modified. Leaf of certain insectivorous plants such as pitcher plant and vanefly trap are also modified leaf, हाँ। modified for of leaf support के लिए tendril, हाँ, in pea plant में प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन, हाँ, कैक्टस में, हाँ, और स्टोरेज ऑफ फूड फ्लैशली ऑनियन और लीव्स में होता है, हाँ। The inflorescence, a flower is modified shoot where the shoot apical meristematic change into the flora meristematic, हाँ। Internate do not elongation and axis get condensed, हाँ। Internode elongation नहीं करता but axis gets condensed. The axis produce different kind of flora appendix literally at the successive node instead of leaves, हाँ। यहाँ से PYQ आया था 2023 में, हाँ। फिर से पढ़ो यहाँ पे, A flower is modified shoot where the shoot apical meristematic change into the folda meristematic. Internate do not elongation नहीं करता and axis get condensed, yes. The apex produce different kind of folda appendix, हाँ। apex produce करता है different kind of folda appendix literally at the successive node, हाँ। कहाँ पे literally at the successive node instead of leaf, successive node पे, कहाँ पे instead of leaf की जगह पे, okay. When a shoot tip transfer into the flower, फिर shoot tip किस में ट्रांसफर हो जाता है, फ्लावर में, it is always solitary, हाँ। तब क्या आ जाता है, always solitary, हाँ। When a shoot tip, जब shoot tip ट्रांसफर हो जाता है फ्लावर में तो it is always solitary होता है, ओके ओके। The arrangement of flower on the flora axis is termed as inflorescence. Depending on whether the axis get developed into the flower or continue to grow, two major type of inflorescence are defined, racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, the main axis continue to grow. The flower are born literally on the acropetal succession, हाँ। racemose में कैसा होता है, acropetal succession होता है। In cymose type of inflorescence, the main axis terminate into the flower, hence it is limited in growth. The flower are born in basipetal order, हाँ। पहले छोटा फिर ऊपर में बड़ा हो जाता है basipetal order में, यस। रेसोमस इन्फ्लोरेंस में देखो इसका एग्जांपल, हाँ। और काइमस का कैसा, ऐसे देखो टर्मिनेट हो गया, हाँ। The flower is the reproductive unit in the angiosperm. It is meant for the sexual reproduction, हाँ। A typical flower has 4 different kind of whorl, हाँ। Whorl arrangement successively on the sloan end of the stick or the petal, हाँ। Called thymus or recipetal, हाँ। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला a typical flower has 4 different kind of whorl arrangement successively in the sloan end of the stick or petal, sloan end of the stick or petal called thalamus or the recipital. These are calyx, cholera, androsium and gygonium. Calyx and cholera are the accessory organ, while androsium and gygonium are the reproductive organ. In some flower like lily, the calyx and cholera are not distinguished, are termed as priantha. In some plant में, कुछ ही plant में like lily, the calyx and cholera are not distinguished and termed as priantha. When a flower has both androsium and gygonium, it is called bisexual, हाँ। A flower having either only one stamen or only one carpel is unisexual, okay. In symmetry, the flower may be actinomorphic plus, इसको दो एक्सिस से काट सकते हैं, रेडिकल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री. व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल रेडिकल हाफ इन एनी रेडिकल प्लेन पासिंग थ्रू देयर सेंटर. कहाँ से पासिंग कहाँ से करना चाहिए? थ्रू सेंटर से. इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक. एग्जाम्पल मस्टर्ड
धतूरा chili, हाँ, when it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, it is called zygomorphic. Example in P. gulmohar bean cagaceae, हाँ, P. gulmohar bean cagaceae. A flower is asymmetric. A flower is asymmetric, irregular if it cannot divide into the two similar half by any vertical plane passing through the center, as in kana. A flower may be trimorous, tetramerous or pentamorous when the polar appendix are in the multiple of 3, 4, 5. क्या फोल्डा अपेंडिक्स मल्टीप्लर में होगा, हाँ, फोल्डा अपेंडिक्स हो रिस्पेक्टिवली. फ्लावर विथ ब्रैकेट reduced leaf found at the base of the petal are called bracket and those without bracket are called ebracket. हाँ. Flower with bracket reduced leaf found in the base of the petal are called bracket and without bracket are called bracket. Based on the position of calyx, coledoxym with respect to the ovary on thalamus. With respect to ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous, and epigynous. In the hypogynosium flower, the zygonium occupies the highest position while other parts are situated below it. The ovary in such flower is said to be superior. Example: mustard, China rose, and brinjal. If zygonium is situated in the center and other part of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level. Rim of the thalamus almost the same level. It is called perigynium. The ovary here is said to be half inferior. किसमें? Palm, rose, peach. Okay. In epigynous flower, the margin of the thalamus grow upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of the flower arises above the ovary. Hence, the ovary is said to be inferior, as in flower of guava and cucumber. Inferior किसमें होता है? Guava and cucumber, and the ray flower of sunflower. And the ray flower of what? Sunflower. Ray flower of what? Sunflower. Yes. जिसन हाइपोगैमस, हाँ देखो यहाँ पे थैलामस, बाकी सब पार्ट नीचे है इसका. यस. और पेरीगैमस देखो यहाँ पे ओवरी है, थैलामस पे उसका सब पार्ट से ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है. हाँ, ऑलमोस्ट द सेम हाइट पे है. एंड द एपिगैमस इसको इंक्लूड है, बाकी सब इसका ऊपर है. यस. Part of flower. Each flower normally has 4 folda wall: calyx, corolla, androecium, and zygonium. Calyx. The calyx is the outermost whorl. Calyx क्या है? Outermost whorl of the flower and the member are called sepal. इसका member को क्या बोलते हैं? Sepal. Generally sepal are green, leaf-like, protect the flower in the bud stage. हाँ. जनरली सीपल जो होता है ग्रीन होता है और लीफ लाइक प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज. द कैलिक्स में भी गेमियोसेपिलस सीपल यूनाइटेड जब होता है. ओके. और पोलियोसेपिलस जब सीपल फ्री होता है. पोलियोसेपिलस कैसे हमको पता गिन सकते हैं? उसी के लिए फ्री को हम गिन सकते हैं, इसी के लिए पोलियोसेपिलस बोलते हैं उसको. ओके. कोलेडा इज कंपोज्ड ऑफ पीटल. हाँ, पीटल आर यूजली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन. Like calyx, corolla may also be gamiopetalous united or polypetalous free. The shape and the color of the corolla vary greatly in plant. Okay. Corolla may be tubular, bell shape, funnel shape or wheel shape. हाँ, कोलरा कैसा हो सकता है? ट्यूबुलर शेप, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप हो जाता है. यहाँ पे शेप इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. ट्यूबुलर शेप, बेल शेप, फनल शेप एंड व्हील शेप. ओके. एस्टिवेशन क्या है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीपल और पिटल इन फोलेडा बड. कहाँ पे? फोलेडा बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्डल. हाँ, अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्डल इज नोन एज एस्टिवेशन. The main type of estivation are valvate, twisted, imbricate and vexillaria. 4 को होता है. When sepal or petal in whorl just touch one another at the margin without overlapping, as in calotropis. हाँ,
It is said to be valvate if one margin of the appendix overlap that of the next one, as shown in China rose, ladyfinger, and cotton. It is called as twisted. If the margin of the orbital overlap one another but not in any particular direction, as in Cagacia and Gulmohar. The estivation is called imbricate. In pea and bean flower, there are 5 petals. Largest standard overlap the 2 lateral petal wing. Standard भी होता है which 2 हो जाता है which stern overlap the 2 smallest inferior petal. Calves kill. This type of estivation is known as vexillary और पल्पिनोस वैक्सिलरी या पल्पिनोस. ये किसका है? वॉल्वेट का एग्जांपल है. वॉल्वेट ये किसका, देखो एक डायरेक्शन में फिर इसके ऊपर एक फिर इसके, ये किसका? ट्विस्टेड. दो नीचे आ गया फिर एक ऊपर एक नीचे, किसी में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, इसी के लिए इसको हम लोग इम्ब्रिकेट बोलते हैं. और इसमें देखो ऐसे एक फूल की तरह से गुलदस्ता की तरह बना, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैक्सिलरी या पल्पिनेशन. ओके. देखो ये क्या है? पीडल. ये क्या? कैलिक्स हरा हरा पार्ट जो होता है. और कोलरा जो पत्ता उस फूल का कली होता है. और इसको जाइजोनियम और इसको एंड्रोसियम. ये क्या? कैलेक्स. ये क्या? कोलेरा. ये क्या? एंड्रोसियम. ये क्या? जाइजोनियम. एंड्रोसियम. एंड्रोसियम इज कंपोज ऑफ स्टेमन. एंड्रोसियम क्या से कंपोज होता है? स्टेमन से. ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और ए फिलामेंटेसिस एंड एंथर. ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? स्टॉक और फिलामेंटस एंड एंथर. ईच एंथर इज यूजली बाइलोब एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर. ईच एंथर यूजली बाइलोब होता है और ईच लोब हैज 2 चैम्बर. द पोलन सेक. 2 चैम्बर को हम लोग पोलन सेक भी बोलते हैं. यस. द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द पोलन सेक. पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इनटू द पोलन सेक. स्टाइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टोमेनाइड. यहाँ से क्वेश्चन आएगा. स्टाइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टोमेनॉइड. स्टोमेनॉइड. NOD इन लास्ट में लगा देना. ओके. Stamens of flower may be united with other members such as petal or among themselves. When stamens are attached to the petal are called epipetalous, as in brinjal, or epiphyllous when attached to the perianth in the flower of lily. The stamen in a flower may be either remain free. The stamen in a flower may either remain free called the polyandrosium or may be united into in varying degree. United होगा in what varying degree. Okay. The stamen may be united into one bunch or one bundle called monoadelphous. जब स्टेमन जो है यूनाइटेड हो जाता है ना वन बंच में, वन बंच और वन बंडल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोएडिलियस. एज इन चैनारोस. और 2 बंडल डाएडिलिफिलस एज इन पी. और इनटू मोर देन 2 बंडल पॉलीएडिलिफस in citrus. There may be variation in the length of the filamentous within the flower as in salvia and mustard. Okay. Gygonium. Gygonium is the female reproductive part of flower and is made of one or more carpel. A carpel consists of 3 parts, namely stigma, style, ovary. Ovary is the enlargement basal part. क्या होता है? ovary is the ovary क्या है? ovary is the enlargement basal part. Okay. On which lie on the elongated tube the style. उस पर क्या lie होता है? elongated tube. elongated tube style. The style connected to ovary to stigma. The stigma is usually at the tip of the style and the receptive surface. stigma क्या है? usually tips of the style है,
tip of the stem and a receptive surface है और for the pollen grain. Each ovary bear one or more ovule attached to the phlyton suckens like placenta. हाँ, क्या बोला यहाँ पे? Each ovary bear one or more ovules. हाँ, क्या बोला यहाँ पे? Each ovary bear one or more ovule attached to a phlyton suckens like placenta. When more than one carpel is present, they may be free, as in Loctus and Rose, and are called apocarpus. हाँ. They term as cyanocarpus when the carpel is fused. As in mustard and tomatoes. हाँ. Cyanocarpus किसमें होता है? मस्टर्ड एंड टोमेटो में. एपोकार्पस लॉक्टस और रोज में. After fertilization, the ovule develop into the seed and ovary into the fruit. Okay. प्लेजेंटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेजेंटेशन. प्लेजेंटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेजेंटेशन. द प्लेजेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइम, नेमली मार्जिनल, एक्सियल, पेरिथियल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल. इन मार्जिनल प्लेजेंटेशन द प्लेजेंटा फॉर्म ए rigid long ventricle saturated of the ovary and the ovule are born on the rigid forming two rows. कितना? 2 rows. हाँ, as in P. When the placenta in the axial and the ovules are attached to it in a multilobular ovary, the placenta is said to be axial, as in China rose, tomato, lemon. In axial placentation, the ovule develop onto the inner wall of the ovary or the peripheral part. हाँ, inner wall of the ovary or peripheral part. Ovary is one chamber but become two chamber due to the formation of false septum. Example: mustard and agrosium. Mustard and agrosium. हाँ. When the ovule are born on the central axis, septa are absent. क्या होता है इसमें? septa are absent होता है. As in Dianthus and Primrose. The placenta is called free central. हाँ. In basal presentation, the placenta develop at the base of the ovary and the single ovule is attached to it as in sunflower and marigold. हाँ, प्लेजेंटेशन में क्या होता है? बेसल में क्या होता है? प्लेजेंटा जो है, प्लेजेंटा डेवलप होता है कहाँ पे? बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल अटैच होता है. कितना? सिंगल ओव्यूल अटैच होता है एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. डायग्राम देखो, ये किसका है? ई है मार्जिनल का, ये एक्सियल का, ये पेरिथियल का, और ये फ्री सेंट्रल का, और ये बेसल का. ओके. फ्रूट. द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. हाँ, फ्रूट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है. ओके. इट इज मैच्योर और रैपिड ओवरी. हाँ, फ्रूट क्या है? मैच्योर और रैपिड ओवरी है. डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन. हाँ, if a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called parthenocarpic fruit. What called? Parthenocarpic fruit. Generally the fruit consists of wall or pericarp of seed. हाँ, wall और pericarp seed. हाँ, wall और pericarp and seed. wall को हम लोग क्या बोलते हैं? pericarp and seed. The pericarp may be dry or fleshly. हाँ, pericarp कैसा हो सकता है? ड्राई और फ्लेशली दोनों हो सकता है. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. ये क्या है? एपिकार्प. हाँ, ये मेसोकार्प, जिसको हम लोग खाते हैं उसको मेसोकार्प बोलते हैं. ओके. फिर सीड, ये क्या? इसका उजला पार्ट सीड होता है. हाँ, इसका सीड. फिर इंडोकार्प होता है. ऊपर वाला हिस्सा क्या बोलते हैं? इंडोकार्प कोकोनट का, और इस सीड का ऊपर का इंडोकार्प बोलते हैं. ओके. इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप. हाँ, दोनों फ्रूट को हम लोग ड्रूप फ्रूट बोलते हैं. दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड. हाँ, दोनों डेवलप होता है कैसे? मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से. हाँ, एंड आर वन सीडेड होता है. क्या होता है? वन सीडेड होता है. ओके. इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प, ए मिडिल फ्लेशली मिडिल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोस्कार्प. इन कोकोनट विच इज ड्रूप. हाँ,
Coconut में क्या is which is also drupe. The mesocarp which for हाँ coconut में mesocarp क्या होता है fibrous होता है. Okay. The seed. The ovules after fertilization develop into the seed. A fruit is made of seed coat and embryo. The embryo is made of radicle, an embryonal axis, and one wheat or maize, or two in as in gram and pea. Structure of dichotomous seed. The outer covering of the seed is seed coat. हाँ outer covering of seed क्या होता है seed coat. The seed coat has two layer. The outer testia. outer क्या होता है testia और inner tegmina. हाँ outer क्या होता है testia inner tegmina होता है. हाँ outer testia कैसे outer testia. हाँ इसमें ए कहीं नहीं आता इसी के लिए इसमें ए आता है. हाँ आउटर में ए आता है इनर में ई आता है इसी के लिए इसमें दो बार ई आ गया. ओके. द हाइलम इज ए स्कर ऑन द सीट कोट. कहाँ पे सीट कोट में था. हाँ हाइलम इज ए स्कर ऑन द सीट कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीट वेयर अटैच टू द फ्रूट. हाँ डेवलपिंग सीट वेयर अटैच टू द fruit. Above the hilum is a small pore called the micropole. Within the seed coat is the embryo. हाँ within the seed coat क्या होता है embryo consisting of an embryonal axis and two cytocotonas. The cytocotonas are often fleshy and fully reserved food material. At the two end of the embryonal axis represent the radicle and the pulmale. हाँ In some seed, such as custard, the endosperm form as a result of double fertilization. हाँ in some कुछ seed में such as custard, endosperm form as a result of double fertilization. In food storing tissue called the endospermic seed. Okay. In plants such as bean, gram, pea, the endosperm is not present in mature seed. Such seeds are called the non-endospermic. हाँ such seeds are called non-endospermic. हाँ देखो माइक्रोपल है यहाँ पे हाइलम है यहाँ सीट कोट है इस साइटोकोटनस है पल्म है रेडिकल है. स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटनस सीट. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटनस सीड. जनरली मोनोकोटनस सीड आर एंडोस्पर्मिक. हाँ जनरली मोनोकोटनस सीड क्या होता है एंडोस्पर्मिक होता है बट सम एज इन ऑर्चिड आर नॉन एंडोस्पर्मिक होता है. हाँ in the seed of cereals such as maize the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. हाँ यहाँ पे क्या बोला in the seed of cereal such as maize the seed coat is membranous. seed coat क्या था membranous generally fused with the fruit wall. किस मोनोकोट में. the endosperm is a bulky and store food. क्या होता है bulky and store food. the outer covering of the endosperm separate the embryonal by the proteinous layer called the aileron layer. हाँ the embryo is a small and situated in a groove at one end of the endosperm. It is consist of one large and shield-shaped cytocotonus known as stibulum. It consists of one large and shield-shaped cytocotonus known as stibulum and short axis with pulmale and a radicle. The pulp and the radicle are enclosed in a sheet which are called the coleopetal. हाँ and coleoregia. रेडिकल किससे कोलोलॉजिया एंड कोलोपेटल से. ओके. ये देखो एम्ब्रियो है और ये क्या है एंडोस्पर्म. एम्ब्रियो और इसके ऊपर एंडोस्पर्म. ये क्या देखो ये जैसे डॉट डॉट बना उसको क्या बोलते हैं एल्यूमिनर लेयर. वह सीट कोट एंड सूट ऊपर जो बना सीट कोट एंड सूट फ्रूट. इसके बाद क्या एंडोस्पर्म है और ये क्या साइटोकोटलस है साइटोकोटलस. ओके. ये क्या कोलियोपेटल पर्म के ऊपर और ये क्या रेडिकल के नीचे कोलोलॉजिया. हाँ यस. Semi-technical description of a typical flowering plant. Various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief in simple and scientific language and present in a proper sequence. The plant is described begin with its habitat vegetative character, root, stem, leaves, and often flora character in florence and flower part. After describing various parts of plant, a flora diagram and a flora formula are
प्रेजेंट। हाँ, द फ्लोरल formula is represented by the sum symbol in flora phenomena. BR stand for bracket, K stand for calyx, C stand for cholera, P stand for perianth, A stand for androsium, G stand for gygonium, G dash for the superior ovary, G ऊपर में inferior ovary। ओके, एक डन मेल डबल फीमेल in the bisexual and a plus actinomorphic percentage zygomorphic in nature of flowering plant। हाँ, fusion is indicated by the enclosing the figure within the bracket and adhesion by a line drawn above। adhesion by line above drawn। yes, यहाँ पे क्या बोला? Fusion is indicated by the enclosing the figure with bracket and adhesive by a line drawn above the symbol of foliar part। okay, a foliar diagram provides information about the number of parts of flower, the arrangement and the relationship they have with one another। The position of mother axis with respect to foliar is represented by the dot line on the top of the foliar diagram। yes, calyx, cholera, androsium, gygonium are drawn in successive whorl। हाँ, successive whorl। yes, successive whorl में। okay, calyx begin with the outermost and the gygonium begin in the center Folder formula also show cohesion and adhesion with other part of folder between the whorls। हाँ, यहाँ पे क्या है? folder formula also show cohesion and adhesion with within the part of whorl between the whorls। okay, the folder diagram and the folder formula figure 25 represent the mustard family Berrycaceae। yes, ये डॉट लाइन क्या? मदर एक्सिस। ये क्या? कैलिक्स। हाँ, कैलिक्स 2 है। कैसा दर्शा रहा? 2। हाँ, हाँ, ये दिखा रहा K2+2 और कैलिक्स 4। हाँ, खुला हुआ इसी के लिए। और एंड्रोसियम 2 बाहर है और 4 अंदर है। गैगोनियम सुपेरियर 2 गो है। ओके, description of some important family Fabaceae। this family was earlier called Papilionoidea। हाँ, Fabaceae फैमिली को हम लोग पहले क्या बोलते थे? Papilionoidea। ए सब फैमिली ऑफ फैमिली लेगुमिनेसिया। ये क्या था? सब फैमिली ऑफ फैमिली लेगुमिनेसिया। ओके, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, वेजिटेटिव करेक्टर ट्री हो सकता है, सर्व हो सकता है, हर्ब्स हो सकता है, रूट होता है, रूट नोड्यूल होता है। किस में? फेविकेसिया में। ट्री, हर्ब, सर्व्स, रूट विथ रूट नोड्यूल। ओके, स्टीम क्या होता है? इरेक्ट और क्लेम्बर होता है। फेविकेसिया में कैसा होता है? स्टीम इरेक्ट और क्लेम्बर होता है। लीफ कैसा होता है? अल्टरनेटिव और पेनिथल कंपाउंड होता है और सिंपल लिप बेस होता है और प्यूनिमुलेट होता है, स्टिपुलेट होता है और वेंटिनेशन रेटिकुलेट होता है। लिप कैसा होता है फेविकेसिया में? अल्टरनेट और पेनिथल कंपाउंड और सिंपल लिप बेस होता है, प्यूमुलेट होता है, स्टिपुलेट होता है और वेंटिनेशन रेटिकुलेट होता है। ओके, देखो फोल्डा करेक्टर आप दिखा रहा है। इनफ्लोरेंस कहता है रेसिमेस। फेविकेसिया में कैसा होता है? रेसोसियम होता है। फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक होता है। हाँ, फेविकेसिया फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक होता है। ओके, जाइगोमॉर्फिक परसेंट। हाँ, और कैलिक्स कहता है सिपल 5 होता है और गैमियोसेपिलस होता है, वॉल्वेट, इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन होता है। हाँ, कैलिक्स कहता होता है 5 को होता है, सिपल 5 को होता है। हाँ, गैमियोसेपिलस होता है, वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट होता है। ओके, एस्टिवेशन। कोलरा कहता है पिटल 5, कोलरा भी 5 को होता है, इसमें पिटल भी फेविकेसिया में। और पॉलीपिटिलस होता है, पेपिलोफिनस होता है, कंसिस्ट ऑफ पोस्टेरियर स्टैंडर एंड 2 लिटरल विंग्स, 2 एंटेरियर वंस फॉर्मिंग द calves, इंटीरियर में फॉर्मिंग calves, इनक्लोजिंग स्टेमन एंड पिस्टल। वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। हाँ, कोलेरा में कैसा एस्टिवेशन होता है फेविकेसिया का? वेक्सिलरी। ओके, एंड्रोसियम कितना होता है? 10, डाइस्टिपुलस होता है, एंथर डेडिकेसियस होता है। जाइगोनियम क्या होता है? ओबेरियर सुपेरियर होता है, मोनोकार्पुलरी होता है, यूनी लोबुलर विथ मेनी ओव्यूल्स, स्टाइल एंड सिंगल होता है। फ्रूट क्या होता है?
फ्रूट क्या होता है, लेग्यूम होता है। फेविकेशियम फ्रूट कैसा होता है, लेग्यूम। सीड 1 to many होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। हाँ, फेविकेशियम सीड कैसा होता है, लेग्यूम होता है, सीड होता है 1 to many, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। फार्मूला कितना होता है, जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज, बाइसेक्सुअल के 5, कैलिक्स 5, और कोलरा 1+2+2 होता है इसका, और एंड्रोसियम 9+1 होता है, जो सुपीरियर ओवरी 1 होता है। ओके। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, मेनी फैमिली बिलोंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ पल्सेस। फेविकेशिया का सोर्स ऑफ किसका, पल्सेस। एकदम ग्राम, अरहर, मूंग, सीम, सोयाबीन, और एडिबल ऑयल क्या होता है, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। एडिबल ऑयल क्या होता है, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट होता है। डाई क्या होता है, इंडिगो फोड़ा। डाई क्या होता है, इंडिगो फोड़ा। फाइबर क्या होता है, सनहिम। फाइबर क्या होता है, सनहिम। फोडर क्या होता है, सेवेनिया एंड टोलेरोफिया। फाइबर क्या होता है, सेबेनिया एंड टोलेफेरिया। और ओरियोमेंथेलेजेंस क्या होता है, लुपिनिया एंड स्वीट पोटैटो। ओरियोमेंथेलेजन क्या होता है, लुपिनिया एंड स्वीट पोटैटो। मेडिसिन ग्लूटामेट। ओके। अब सोलेनेसिया आ गए, किस पे, सोलेनेसिया। इट इज द लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड द पोटैटो फैमिली। सोलेनेसिया कॉल्ड द पोटैटो फैमिली। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेचर वन में सोलेनेसिया होता है। ओके। वेजिटेटिव कैरेक्टर, प्लांट मोस्टली हर्ब्स होता है। सोलेनेसिया का प्लांट क्या होता है, मोस्टली हर्ब्स होता है, सर्ब्स एंड रियरली स्मॉल ट्री होता है। सोलेनेसिया जो है रियरली स्मॉल ट्री होता है। ओके। स्टीम क्या होता है, हर्बेसियस रियरी उडी होता है। हर्बेसियस रियरी उडी होता है। एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड सॉलिड होता है, सॉलिड। ओके। और होली हेयरी ग्लोबुलस अंडरग्राउंड स्टीम इन पोटैटो, सोलेनेमिया टुबरेसिया। पोटैटो क्या बोलते हैं, सोलेनेमियम टुबरेसिया। लीफ कैसा होता है, अल्टरनेट, सिंपल, रियरली पेनिथल होता है। इसका जो होता है ना, सोलेनेसिया का रियरली पेनिथल कंपाउंड होता है। ओके। एक्जिप्यूटलेट होता है, वेंटिनेशन रेटिकुलेट होता है। ओके। फोल्डा करेक्टर कैसा होता है, इनफ्लोरेंस कैसा होता है, सोलेट्री होता है। इनफ्लोरेंस कैसा होता है, सोलेट्री होता है। बट फेविकेशियम रेसेमिस होता है। ओके। और यहाँ पे इन्फ्लोरेंस, सोलेट्री, एक्सिलरी और काइमस इन सोलेनेसिया। और काइमोस किस में होता है, सोलेनेसिया में होता है, इन्फ्लोरेंस में। ओके। फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होता है, सेम एज फेविकेशिया। कैलेक्स क्या होता है, सिपल 5 होता है, यूनाइटेड प्रिस्टिन वल्वेट एस्टिवेशन होता है। और कोल्डा पिटल 5 यूनाइटेड वल्वेट एस्टिवेशन होता है। सोलेनेसिया में कैलेक्स कोला दोनों वल्वेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोसियम स्टेमन 5 होता है, एपीपिटलस होता है। ओके। गाइगोनियम बाइकार्पुलरी ऑब्लिगेट प्लेस्ड होता है। साइनोकार्पिस ओवरी सुपेरियर, प्लेजेंटा स्लोन विथ मेनी ओव्यूल्स। फ्रूट क्या होता है, बेरी एंड कैप्सूल होता है। सोलेनेसियम फ्रूट कैसा होता है, बेरी एंड कैप्सूल होता है। सीड मेनी नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ओके। फॉलोरा फार्मूला प्लस एक्टिनोमॉर्फिक, और यहाँ पे देखो बाइसेक्सुअल होता है, K5 फ्यूज होता है, और C5 होता है, A5 होता है, और C और A5 दोनों कनेक्टेड होता है। ओके। और सुपीरियर ओवरी 2 होता है, और फेविकेशियम 1 होता है, सुपीरियर ओवरी। ओके। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, मेनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड। पोटैटो, ब्रिंजल, टमाटो। स्पाइसिस, चिली। मेडिसिन, बेलविडोनिया एंड अश्वगंधा। मेडिसिन, बेलविडोनिया एंड अश्वगंधा। फूमिग्रेटरी, टोबैको होता है। फूमिग्रेटरी क्या होता है, टोबैको। ओरियोमेंथेलेजन क्या होता है, पिटूनिया होता है। और ओरियोमेंथेलेजन कितना होता है, पिटूनिया होता है। ओरियोमेंथेलेजन पिटूनिया होता है, किसका, सोलेनेसिया फैमिली का। ओके। अब हम आते हैं लिलीसिया, कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली, इज ए करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनो कैटनोलस प्लांट। हाँ, लिली फैमिली कैसा होता है, मोनोकैटनस प्लांट होता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। वेजिटेटिव करेक्टर, पिरियल हर्ब्स होता है विथ अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म्स एंड राइबोजियम होता है। ओके। लीव्स कैसा होता है, मोस्टली बेसल होता है। मोस्टली लिली फैमिली का लीव कैसा, मोस्टली बेसल होता है। अल्टरनेटिव होता है, लीनियर एग्जीक्यूटल विथ पैरेलल वेंटिलेशन होता है। ओके। फोल्डा कैरेक्टर का इन्फ्लोरेंस क्या होता है, सोलेटरी होता है और साइगोमस होता है। ऑफ्टन यूम्बिलेट क्लस्टर भी होता है। हाँ, इन्फ्लोरेंस कैसा होता है लिली फैमिली का, सोलेटरी होता है और साइगोमस होता है। ऑफ्टन यूम्बिलेट क्लस्टर होता है। ओके। फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। प्रियांत कैसा होता है, टिपल होता है, टिपल 6 3+3 होता है। ऑफ्टन यूनाइटेड इनटू द ट्यूब, वल्वेट एस्टिवेशन। एंड्रोसियम क्या होता है, स्टेमन 6 होता है। स्टेमन कितना 6 3+3 एपीपिटलस होता है। गाइगोनियम क्या होता है, ट्राइकार्पेलरी होता है। सैनोकार्पी, ट्राइकार्पेलरी, सैनोकार्पी, ओवेरियर, सुपीरियर और ट्राइलुबुलर विथ मेनी ओव्यूल्स। एक्सियल प्लांटेशन होता है। एक्सियल प्लांटेशन होता है लिली फैमिली में। फ्रूट कैसा होता है लिली फैमिली में, कैप्सूल होता है, रियरली बेरी होता है। हाँ,
रेयरली बैरी होता है लेकिन सीड कैसा होता है, एंड्रोसियम होता है। सीड कैसा होता है, एंड्रोसियम होता है लिली फैमिली का। और इसका फ्रॉम ब्रैकेट 5 प्लस एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल 3 प्रियान 3+3 और A3+3 फ्यूज नहीं होता, एंड्रोसियम 3+3 फ्यूज नहीं होता। और डायग्राम से जुड़ा होता है G3 होता है। ओके, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, मेनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली आर द गुड ओरिमेंथस, टूलिप एंड ग्लोरेसिया, टूलिप एंड ग्लोरेसिया। सोर्स ऑफ मेडिसिन एल्वोलाई और एलाई। वेजिटेबल वेजिटेबल का एस्पारेगस जो कि ये होता है एडिवेंटेसियस रूट सिस्टम। एंड क्लोचिन क्लोचिन ऑटोनोमेलिया होता। ओके कंप्लीट। या देखो डायग्राम। अब आगे हम लोग समरी। Flowering plant exhibit enormous variation in shape, size, structure, mode of nutrition, lifespan, habitat. They have well-developed root and shoot system. Root system is either taproot or fibrous. Generally, dichotomous plant have taproot system होता है, okay, while monocotyledonous plant have fibrous root होता है. The root in the some plant modify for storage of food, mechanical support, respiration. The shoot system is differentiated into the stem, leaves, flower, and fruit. The morphological feature of the stem like presence of nodes and internodes, multilobular is here positively phototropic. हाँ, nature help to differentiate stem from root. हाँ, stem also get modified to perform diverse functions such as storage of food, vegetative propagation, protection under different conditions. Leaf is the lateral outgrowth of the stem. हाँ, leaf क्या है? Leaf lateral outgrowth of the stem है. Develop axonomously. Develop कैसे होता है? Axonomously at the nodes. They are green in color to perform the function of photosynthesis. Leaf exhibit marked variation in their shape, size, marginal apex, extent, incision of leaf blade lamina. Leaf other parts of the plant. Leaf also get modified into the other structures such as tendrils, spines for climbing and protection respectively. The flower is modified shoot mint for sexual reproduction. हाँ, flower is modified shoot mint of sexual reproduction. Flower is modified shoot for sexual reproduction. Okay, the flower are arranged in different type of inflorescence. They exhibit enormous variation in the structure, symmetry, position, ovary in relation to other part, arrangement of petals, sepals, ovals. After fertilization, ovary modified fruit and ovule seed. Seed either may be monocotyledonous or dicotyledonous. The varies in shape, size, period of viability. The folda character form the basis of classification and identification of flowering plant. This can be illustrated through the semi-technical description of family. Hence, a flowering plant is description in a definite sequence by using scientific term. The folda features are represented by the summarized from the folda diagram and folda formula. और ये चैप्टर completed. बस into वाह.